Hello, good evening, everyone. Good evening, Am sir. I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. Yeah. Let us start with the today's session. So many participants are in queue. Slowly, they will join. No issues. Most all of us. Yeah, Mr. Mon Patel. Yeah. Welcome, sir. How are you? I'm fine, sir. So finally, you got the link. yeah. Okay, great. So the class will be in English only or Hindi also? It will be Hindi English. That is better because my children are not aware of much English. Because here in Andhra, Normally this will be in Hindi English, and we are having special Marathi session for Maharashtra people. Achha. So this 5 day session will be in Hindi English. Okay. Because so many North Indian as well as South Indian people are also connected. Yeah. Okay, I am expecting few more participants. Let us continue with our introduction. Actually, today's session is something different session. I think my view is not clear. Let me adjust my view. Just a minute. Okay. Is it clear now? So this training program is study without remembering. आज का सेशन और आज के बाद के नेक्स्ट 4 सेशंस हमें कुछ साइंटिफिक बातें करनी है जो आज तक हम करते आए हैं और इसके बाद हमें क्या करना है. रिगार्डिंग दिस विल बी लर्निंग सो मेनी न्यू थिंग्स. एक सजेशन है, सब लोग अपना माइक म्यूट रखें. जब भी बात करना है प्लीज रेज योर हैंड so that I can support you. Oh, thank you. So I was discussing about some rules. Rule number 1. Now everybody is mute. Our chat is open. If you have any queries, you can put in chat. Okay. But best way, my request is note down on paper, and at the end of this session, we'll be having 1-to-1. All your queries will be resolved. So last 5 minute session will be there for questions and answers regarding today's sessions only. Okay. So thank you very much. I am sharing my screen and let us continue main session about study without remembering. क्या है आपको ध्यान में क्या आता है? What is study without remembering? आज तक हमने जो स्टडी किया है, is it without remembering or with remembering? Sir, your voice is not available. Okay. Is it audible now? Yes, sir. Okay. मैं ये बोल रहा था कि अभी का जो सेशन है इट इज कॉन्वर्सेशन सेशन. थोड़ा पार्ट तो उसका कॉन्वर्सेशन में है. सो वंस अगेन आई allowed you to unmute it. Okay. So
मेरा क्वेश्चन ये था कि स्टडी विदाउट रिमेम्बरिंग, ये जब हम कहते हैं तब हमने जो स्टडी किया है या हमारे बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, पेरेंट्स आल्सो मे बी अवेलेबल बिकॉज टुडे सेशन इज विद पेरेंट्स आल्सो, इट्स फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स। ओके, आपको क्या लगता है कि आज तक हमने जो स्टडी किया है रिमेम्बरिंग में किया है या विदाउट रिमेम्बरिंग किया है? रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग किया है, एंड फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग रीडिंग राइटिंग स्किल्स, राइट। साथ में हम कुछ मेमोरी के टेक्निक्स भी यूज कर रहे हैं। तो आज हम थोड़े सा देखेंगे कि क्या रिलेशंस है, वेदर इट इज नीडेड और नॉट। ओके, ये सेशन हमारा 5 दिन का है, उसका शेड्यूल मैं आपके सामने दे रहा हूँ ताकि आज ही आपको पता चलेगा कि कौन से दिन में क्या क्या होने वाला है। ओके, सो डे 1 teaching and learning patterns. This session is with parents because parents are teaching students, children, and children are learning. So इसीलिए teaching और learning patterns में कहाँ conflict होते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और ये पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। डे 2 हाउ टू रीड बुक्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको बुक रीड करने के लिए सिखाया जाएगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन टेस्ट आल्सो, एंड पेरेंट्स विल टेक दैट टेस्ट। 10 मिनट का टेस्ट रहेगा। थर्ड वन इज व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड मार्क्स। स्टडी करे ना करे, ज्यादा करे या कम करे, जो मिलने वाला परसेंटेज रहता है वो फिक्स क्यों रहता है? व्हाट एग्जैक्टली रीजन बिहाइंड इट, क्या साइकोलॉजी होता है? Next part is how to create study timetable which works, including scientific revision pattern. आज तक हमने बहुत बार स्टडी के टाइम टेबल्स क्रिएट किए हैं और बहुत बार उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है क्योंकि इट इज नॉट वर्क। यहाँ हमें ऐसा टेक्नोलॉजी दिया जाएगा कि जो वर्क करेगा, एंड स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर देयर ओन स्टडी टाइम टेबल बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। उनको कैसे बनाना है उसका पूरा गाइडलाइंस वो 1 घंटे में दिया जाएगा। एंड मेरा आज तक का रिकॉर्ड ऐसा है कि पिछले 4-5 साल से बच्चे खुद हर 3-6 महीने के बाद रिवाइज करके नया टाइम टेबल बनाते हैं, एंड इट्स वर्किंग। तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी की जो सच में काम करेगा वो आपको इससे में मिलने वाला है। और डे 5 में हाउ टू बी बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मर विदाउट एनी स्पेसिफिक कोचिंग, ये भी पेरेंट्स के साथ है। तो ये 5 सेशंस हम आपको यहाँ पे देने वाला है। लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज फर्स्ट सेशन, पार्ट ए, टीचिंग एंड लर्निंग पैटर्न्स। सर वो फिफ्थ डे का लिखना है सर, 5th डे का लिखा है ना? डे 5 इट इज देयर, हाउ टू बी ए बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मर विदाउट एनी स्पेशल कोचिंग। चाहे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना है, हायर स्टडीज में प्रॉब्लम्स रहते हैं, एंड एवरीवेयर वी आर गोइंग फॉर स्पेशल कोचिंग, या इवन नॉर्मल सिचुएशन में भी लोग कोचिंग के लिए इसलिए जाते हैं बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट माय चाइल्ड इज नॉट इनफ टू ग्रास्प इन दैट स्कूल सिलेबस। जो स्कूल में जो टीचिंग होता है उसमें दिस इज नॉट इनफ, ऐसा समझ के हम उनको बच्चों को आगे स्पेशल कोचिंग के लिए, या समटाइम्स सभी लोग तो स्पेशल कोचिंग के लिए नहीं भेजते, लेकिन ग्रुप ट्यूशन होगा या ऑर्डिनरी ट्यूशन होगा, वहाँ तो हमारे बच्चे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बच्चों का रिवीजन हो सके, राइट। तो ये सब पैटर्न जो है उसी के पीछे का साइकोलॉजी और कितना वर्क करता है कितना वर्क नहीं करता है वो सब कुछ हमें ये 5 दिन के सेशन में मिलेगा। एंड डे 5 में आपको स्पेशल टेक्नोलॉजी मिलेगा कि हाउ टू बी द बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मर विदाउट एनी स्पेशल कोचिंग। सो ये शेड्यूल जो है 5 दिन का, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? आगे जाएं? Yes, Yeah. sir. यस सर। Okay. Okay, so let us continue for today's session, teaching and learning patterns.
उसके पहले हम थोड़ा सा देखेंगे बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या है. So parents can also share their children's problem. Students can also share their problems. Exactly study करने में, study perform करते समय उनको क्या क्या problems आता है. What are the problems they are facing? So that हम प्रयास करेंगे कि अगले 4 दिन में और आज का दिन में सभी आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको पता चले, या कम से कम रीजन तो पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट प्रॉब्लम. So this will support you to identify and resolve that issue. Yeah. बोलिए. क्या बोले सर? अगर कुछ प्रॉब्लम्स है स्टडी करते समय, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है उसके बारे में डिस्कस. सर बार बार या बोलने से या फिर बार बार पढ़ने से याद नहीं रहता वो. और फॉर एग्जांपल हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी का कोई पोयम लर्न कर रहे हैं तो उस पोयम को हम बार बार पढ़े तो भी याद नहीं रहता, और जो पोयम के लाइंस है उसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है. ओके, बार बार पढ़ने से याद नहीं होता है, याद नहीं रहता है. हाँ, और लेकिन- सर पोयम्स के लेकिन अगर सब लोग- कोई लाइन, लेकिन सब poems लोग का तो अगर वही कोई बताते हैं ना. यस बोलो. पोयम्स के अगर कोई लाइन हो तो उसमें अगर कोई वर्ड्स है तो वर्ड्स का भी मतलब वर्ड्स इधर उधर चले जाते हैं लर्न करते वक्त. ओके, पोएम्स के लाइंस इधर उधर चले जाते हैं. ग्रेट. इसका रीजन बिहाइंड दिस इज, मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ. ब्रेन साइंस टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च हो चुका है, रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस. क्या मैंने बताया? रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग इज ऑटोमेटिक प्रोसेस. आपको याद करने के लिए कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, और एग्जाम के टाइम पे रिकॉलिंग करते समय भी आपको सोचने की जरूरत नहीं. मे बी यू मे नॉट एग्री विद दिस, क्योंकि आपको अभी तक मालूम नहीं है, उसका एविडेंस आपको मिला नहीं है. लेकिन ये 5 दिन में आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ. राइट. सो यू विल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कि कोई भी स्टडी याद रखने की जरूरत नहीं है, बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है. एक बार भी रीड करने से हमारा स्टडी हो जाता है. अभी बहुत बार ऐसा सवाल मुझे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या मेरे बेटे के लिए ये पॉसिबल है? मैं बोलता हूँ यस, इट्स पॉसिबल. कंडीशन ये की है, क्या आपके बच्चे को चलना आता है? क्या आपके बच्चे को खेलना आता है? क्या आपके बच्चे को चलना, खेलना, साथ में रोड क्रॉस करना आता है, बोलना आता है? ये 4 ही चीजें हैं: चलना, बोलना, खेलना और रास्ता क्रॉस करना. उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है: चलना, बोलना, खेलना. अगर ये 3 आते हैं तो यू कैन रिमेम्बर एनीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम. और मैथमेटिक्स में अगर प्रॉब्लम है और आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, देन यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, अगर आप रास्ता क्रॉस कर सकते हैं. ये मेरा अभी तक का रिसर्च है, और ये रिसर्च में आज तक मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है. सो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन प्रोसीड. खाली आपका बिलीफ होने के लिए आपको एविडेंस होना जरूरी रहता है, और इसलिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं दैट इज एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. कौन सा टेक्नोलॉजी? एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. क्योंकि कोई भी चीज को हम ऐसे ही भरोसा नहीं करते, कोई भी चीज के ऊपर हम भरोसा नहीं करते, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई तो एविडेंस होना चाहिए, पुरावा होना चाहिए. राइट. विदाउट एविडेंस हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते. ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, और ये बिलीफ सिस्टम में जो फिट हो गया है उसको निकालने के लिए हमें कोई एविडेंस होना चाहिए. हाउ मेनी एविडेंस रिक्वायर्ड? 3 एविडेंस रिक्वायर्ड. मिनिमम 3 एविडेंसेस आपको क्रिएट करना है कि यू आर चैंपियन, एंड नेक्स्ट डे यू विल बी चैंपियन. राइट. सो एनी अदर प्रॉब्लम्स?
बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया. So thank you very much for sharing these queries. Parents, as well as हेलो सर. yeah, हेलो. याद करती हूँ ना, वो भूल जाती हूँ, याद नहीं होता है. मैंने अभी वही क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है. बिकॉज रिमेम्बरिंग एंड रिकॉलिंग इज ऑटोमेटिक प्रेशर. आपने याद करने की कोशिश की तो बिना सोचे आपको रिकॉलिंग नहीं होगा. सो यू आर पुटिंग प्रेशर टू रिमेम्बर, और बिकॉज ऑफ दैट आपको रिकॉलिंग में तकलीफ हो रही है. जितना ज्यादा प्रेशर हम डालेंगे रिकॉलिंग के, रिमेम्बरिंग के लिए, याद रखने के लिए, 10 बार हम रट्टा मारते हैं, लिखते हैं 5 बार लिखते हैं, राइट. तो हम जितना प्रेशर देंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और याद रखने के लिए, उतना ही आपको टाइम लगेगा, उतना ही प्रेशर आपको देना पड़ेगा रिकॉलिंग करने के लिए. यू कैन नॉट रिकॉल इट विदाउट थिंकिंग. अगर आपने कोई चीज रिमेम्बरिंग की है तो रिकॉलिंग करने के लिए सोचना बहुत मैंडेटरी है. लेकिन अगर आपने कोई भी चीज याद नहीं रखी है, यू आर नॉट रिमेम्बर एनीथिंग. देखो ना, हम टीवी का सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, कभी ऐसा सीरियसली बैठते कि उसके सामने के अभी उसको पूरा रट्टा मारना याद रखना है? नहीं है. वी आर नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग. लेकिन रिकॉलिंग उसका फास्ट होता है विदाउट थिंकिंग, बिकॉज वी आर नॉट रिमेम्बर्ड एनीथिंग. एंड दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द साइंस. एक्चुअली ये साइंस है और इसीलिए सभी के ऊपर काम करेगा ये. मैं साइंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सभी के ऊपर काम करेगा. अगर आपको चलना आता है, बोलना आता है, खेलना आता है, तो आपके ऊपर ये काम करेगा टेक्नोलॉजी, चाहे आज आपको कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, राइट. सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. चलो हम आगे चलते हैं. और किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए इमीडिएटली, सो दैट हम उसको रिजॉल्व करके आगे जाएंगे. सर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता. पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कंसंट्रेशन. टीवी के सामने मोबाइल हाथ में लिया तो कंसंट्रेशन होता है? यस नो? यस सर होता है. होता है. इसका मतलब कंसंट्रेशन इज नॉट एन इश्यू, कंसंट्रेशन इज नॉट एन प्रॉब्लम. हाउ टू डू कंसंट्रेशन इन स्टडीज इज द प्रॉब्लम. कंसंट्रेशन हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टडी में कंसंट्रेशन कैसे करना है ये प्रॉब्लम है. आपको खाली क्या चाहिए, उसको यूज कैसे करना है, उसका टेक्नोलॉजी मालूम होना चाहिए. वो हो गया तो आपके पास ऑलरेडी कंसंट्रेशन का स्किल है, उसको आप यूज कर सकते. ओके. और ये कोई भी स्कूल और कॉलेज में क्लासेस में नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू यूज कंसंट्रेशन. सब लोग बोलते हैं कि ध्यान दे के पढ़ाई करो, लेकिन आज तक लाइफ में मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि हाउ टू स्टडी विथ कंसंट्रेशन. सब लोग बोलते हैं कि पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन के साथ करो, लेकिन करना कैसे है? देयर शुड बी समवन कि जो हमें सिखाए, बताए कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ये कंसंट्रेशन से हो जाता, राइट. तो ये सब कुछ चीजें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, राइट. ओके, so let us start with the next slide. Learning styles. हम सीखते कैसे हैं मालूम है? There are 5 sensors, और 5 sensors के अलावा anything is there, input device की जो यूनिवर्स से पूरा कुछ इंफॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन में डालें. There is only these 5 sensors. और ये 5 सेंसर्स को कंबाइन करके उसमें से 3 मेजॉरिटी है, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक. ऐसे 3 अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स है. हर बच्चे में, हर अडल्ट में, हर ह्यूमन बीइंग में ये 3 लर्निंग स्टाइल्स होता है. तीनों भी लर्निंग स्टाइल्स होता है, लेकिन इसी में एक लर्निंग स्टाइल ये आपका प्राइमरी रहता है, मतलब डोमिनेंट रहता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग दैट लर्निंग स्टाइल ओनली इन आवर एंटायर लाइफ. बाकी 2 लर्निंग स्टाइल्स को हम टच भी नहीं करते. एंड दिस इज वन ऑफ माय स्पेशल एजुकेशनल प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट के लेके हम काफी दिनों से काम कर रहे हैं. ऑलमोस्ट पिछले 5 महीने से हम ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर. एंड ये लर्निंग स्टाइल में आपको फ्री लर्निंग स्टाइल का टेस्ट लिया जाता है. आपको गाइडलाइंस दिया जाता है कि
कैसे स्टडी करना चाहिए, स्टडी में कैसे यूज करना है, गाइडलाइंस दिया जाता है कि इसको रिलेशनशिप में कैसे यूज करना है, और गाइडलाइन दिया जाता है उसको ऑफिस एनवायरनमेंट में कैसे यूज किया जाता है। और ये पूरा सिलेबस आज हमारा कंप्लीट होने वाला है। सो लेट अस हैव वन पोल, देख लेते हैं कि कितने लोगों को लर्निंग स्टाइल्स के बारे में पता है। सो आई हैव लॉन्च्ड वन पोल, आपके स्क्रीन पे पोल आया होगा। आर यू अवेयर ऑफ योर लर्निंग स्टाइल? अगर है तो यस लिखो, नो है, नहीं है मालूम तो नो लिखो। सब लोगों को लिखना है। अभी तक 12 लोगों ने रिप्लाई दे दिया है। ओके, 14 स्टिल 4 आर मिसिंग, और 4 लोग। ओके, सो 18 में से 14 लोगों ने जवाब दे दिया है। आउट ऑफ दैट 43%, 6 लोग बोल रहे कि यस दे आर अवेयर अबाउट देयर लर्निंग स्टाइल, और 8 लोग बोल रहे हैं 57% कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर लर्निंग। अभी अगर आपको लर्निंग स्टाइल के बारे में मालूम नहीं है, या इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, डोंट वरी, you will learn and as well as you will understand your learning style. हम आपको सपोर्ट करेंगे आपका लर्निंग स्टाइल क्या है वो देखने के लिए, और उसके साथ साथ हम आज का सेशन भी हम कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा टारगेट है बाय दिसंबर 2021 कम से कम भारत में से 1 लाख स्टूडेंट्स को फ्री में उनका लर्निंग स्टाइल का अंडरस्टैंडिंग करके देना है, क्या है उनका लर्निंग स्टाइल और उसको कैसे यूटिलाइज करना है स्टडीज में, उसके रिलेटेड हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड दिस विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज आवर वन ऑफ द सोशल प्रोजेक्ट। आगे जाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं डॉक्टर मोहन पाखरे, आई एम फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ जीनियस इंडिया रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। बाय प्रोफेशन आई एम साइकोथेरेपिस्ट, इंटरनेशनल काउंसलर। आज तक 20 कंट्रीज के बच्चों को मैंने स्टडी के पैटर्न्स के रिलेटेड ट्रेनिंग दे दिया है। आई एम सेल्फ एस्टीम कोच, इसको पेरेंटिंग कोच भी कहते हैं इंडिया में। आई एम मैथमेटिशियन, PhD इन मैथमेटिक्स। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद डॉक्टर जो विटाले। अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखा होगा तो उससे में डॉक्टर जो विटाले, ही वाज वन ऑफ द प्रेजेंटर। मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट एज वेल एज ग्राफोथेरेपिस्ट, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, आर्ट ऑफ टीचिंग सर्टिफाइड। I am training CBSE, ICSE as well as IB teachers, IB school teachers, and I am fingerprint analyst also. By using fingerprint analysis, I am supporting students as well as parents to resolve their family issues, as well as for students, I am supporting them for their career. I have some national, international memberships also. I am the member of Lions International, American Union of NLP USA, Record Holders Republic Community UK, Global Sciences Foundation United Kingdom, as well as World Record Holders Club of India. My achievements is in mathematics. I have 2 research and 1 research is already hit in Guinness Book of World Record, as well as one research it has hit in Limca India as well as Asia Book of Record. My name is in almost 7 world record books till today. आप खाली गूगल में जाके मेरा नाम भी टाइप करोगे, आपको मेरा पूरा हिस्ट्री मिलेगा। पहले पन्ने पे आपका जितना भी इंक्वायरीज आएगा, सर्च के रिजल्ट आएंगे, वो सब कुछ मेरे रहेंगे। So you can try that also. That's it. This was brief about me. Is it interesting to learn with me now? आज का सेशन मजा Yes sir, yes sir. इंटरेस्टिंग रहेगा। Sir. You are a great person. Yeah. Great teacher. Thank you, Dr. Jayesh. Dr. Jayesh is one of my best friend. काफी Yeah. दिनों से हमारे, काफी सालों से हमारी दोस्ती है, Really. and he is also multi-talented personality. Thank you sir. अगर नेक्स्ट 5 साल में 4 दिन में अगर पॉसिबली अगर टाइम परमिट हो जाता है तो
we can introduce you also, sir. Thank you very much. So let us start with the today's session. आज का सेशन में शुरू करते हैं कि how do we learn. मैंने अभी जस्ट बताया था कि there are 5 senses, right? There are 5 senses and based in these 5 senses only we are collecting the information and forwarding to the brain. उसमें क्या आता है? 5 senses कौन-कौन से हैं? तो आपके सामने दिए हैं. बच्चे प्लीज बताइए कौन-कौन से 5 सेंसर्स हैं? आपको तो सिखाया है ना? आंख है, आंखों से आप देखते हैं, कानों से आप हियरिंग करते हैं, लिसन करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, टच है, एज वेल एज स्मेल है. hearing, Anybody is having any other sensor other than these 5? किसी के पास 5 के अलावा और कोई सेंसर्स है कि जिससे नहीं। उनको उनके ब्रेन को इनपुट कुछ मिल रहा है यूनिवर्स से? 6 sense. या कुछ लोग हैं जिनको 6 सेंस है, लेकिन ऑर्डिनरी पब्लिक के पास तो 5 सेंसर्स ही होते हैं. सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन 5 सेंसर्स, और ये 5 सेंसर्स से ही लर्निंग स्टाइल डिजाइन होती है, राइट? ऑलमोस्ट 87% इन आवर लाइफ जो भी हमने सीखा है, हमने देख के सीखा है. कहीं तो देखा है, चाहे वो मूवी में हो, चाहे हमने फैमिली में देखा हो, चाहे हमने किसी बुक में देखा हो, कहीं ना कहीं तो विजुअल से हम ऑलमोस्ट 87% लर्न करते हैं. हियरिंग से सुन के किसी को तो कुछ सुना है और वहां से हमने सीखा है ऑलमोस्ट 11%. तो मेजॉरिटी हमारा होता है आंख और कान, ये दोनों से ही हमारा मैक्सिमम लर्निंग होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारी पूरी लाइफ हम चलाते हैं. तो लेट अस सी, यहाँ पे हमने बताया है कि सीइंग से 83% है, हियरिंग से 11% है, टचिंग से 3.5% है, स्मेल लेके 1.5%. ये नंबर परसेंटेज वेरी हो जाता है, इसका कुछ परफेक्ट नहीं है, बट ऑन एन एवरेज हमने जो कैलकुलेशंस किया है यूनिवर्स में, वर्ल्ड में जो लोगों ने रिसर्च किए हैं, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने जो पेपर सबमिट किए हैं वहाँ ये नंबर्स आए हैं. सो 83%, 11%, सो ऑलमोस्ट 94%, सॉरी 94% हमारा जो भी हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं हमारे लाइफ में, खाली सीइंग और हियरिंग से सीख रहे हैं. और बाकी सब जो है टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्ट, इससे हम बाकी का 6% यहाँ से मिल रहा है, राइट? तो साइट, टच, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल. पीपल लर्न थ्रू हियरिंग, सीइंग एंड डूइंग. मेजॉरिटी कहाँ आ रहा है? हियरिंग, सीइंग एंड डूइंग. डूइंग में ये बाकी के जो 3 है, ये डूइंग में हम कंसिडर करते हैं. टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, उसमें आपका फिजिकल हेल्थ एज वेल एज उसको है हम मोटर स्किल कहते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर कंसिडरिंग, और यहाँ पे कंसिडर करके पीपल लर्न थ्रू हियरिंग. We use all 3 methods, but everyone has a unique learning pattern. मैंने अभी बताया था कि हर एक के पास तीनों रहता है, लेकिन एक हमारा डोमिनेंट होता है. तो हमें देखना है कि हमारा डोमिनेंट कौन सा आएगा, इधर वी आर विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक. अभी हमारा जो पोल हो गया था, पोल में हमने देखा था कि 6 लोगों ने बताया था, 6 कैंडिडेट्स हैव सेड कि दे नो अबाउट देयर लर्निंग स्टाइल. तो देख लेते हैं वो 6 कौन है और उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, so that we can immediately relate with the learning styles. जरा हाथ रेज करेंगे, या आप अगर अपना चार्ट में अगर लिखेंगे आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, that will be best. If you know your learning style, just mention in chat window. Oral नो रिस्पॉन्स, कोई नहीं लिख रहा है. आपको मालूम है 6 लोगों ने लिखा था अभी यहाँ के पोल में, मुझे मालूम है करके. एंड करने के लिए पॉइंट वाइज पढ़ते हैं.
नहीं नहीं, आपका लर्निंग स्टाइल आपको विजुअल है, ऑडिटरी है या किनेस्थेटिक है, इसके बारे में आपको कुछ मालूम है तो आपको खाली बताना है कि आई एम विजुअल, आई एम ऑडिटरी, आई एम किनेस्थेटिक। या अजय प्रकाश जी सेज ऑडिटरी। असम, ग्रेट। देखो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं विजुअल हूँ तो अच्छा हूँ, बिकॉज 83% वहां दिखा रहा है, मैं ऑडिटरी हूँ तो 11% थोड़ा कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। Each and every learning style is having their own pros and cons, right? Okay, Dr. Jayesh, visual, Asia, auditory. Okay, आपने टेस्ट करके लिया है तो that will be best, वो फुल प्रूफ रहेगा। Okay, no problem. Kinesthetic, anybody there from kinesthetic? Okay, Sanvi, class 7, visual, great. तो विजुअल और ऑडिटरी के दो यहाँ पे हैं, so it will be very easy. Okay, Asia, okay, ऑडिटरी, दीप्ति ऑडियो एंड विजुअल, नहीं दोनों में से एक रहेगा। दोनों का रेशियो सेम है क्या मैम? दीप्ति, छाया माने विजुअल, ओके। सो यहाँ देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी कि विजुअल एंड ऑडिटरी और किनेस्थेटिक कैसे होते हैं, हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंटर्स इनटू। ओके, विजुअल मोर है आपका मैम, ओके, फैंटास्टिक। सो इंफॉर्मेशन एंटर्स योर ब्रेन इन 3 मेन वेज। जैसे अभी हमने देखा, ये 3 लर्निंग स्टाइल के थ्रू हमें मेजरली अभी देखना है, काम करना है। So visual learners, they learn by seeing the things. Auditory learners, they learn by hearing. Listening हम नहीं बोलते उसको, listening is a different concept. तो हम सुन के, visuals लोग देख के सीखते हैं, auditory सुन के सीखते हैं, and kinesthetic जो रहते हैं उनको हम tactile भी कहते हैं, tactile learner खुद को ही kinesthetic कहते हैं, और touch, feel and other activities, ये सब देख के उसके जरिए हम सीख लेते हैं। सो दोज हु आर विजुअल, अभी लेट अस स्टार्ट विद द विजुअल्स। विजुअल से क्या पता चलेगा? विजुअल लर्नर्स प्रेफर टू सी द इंफॉर्मेशन सच एज पिक्चर्स, डायग्राम्स, कार्टून्स, डेमोन्स्ट्रेशंस। मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रीड करता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चलता है उसको देखेंगे। इजीली डिस्ट्रैक्टेड इन लेक्चर्स, थोड़ा भी कहीं भी वो क्लास में बैठे हैं और साइड से अगर कोई जाता है विंडोज से तो भी उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इनके लिए मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स क्या होता है मैं बताता हूँ। विजुअल वालों को सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मली आगे का सीट होना जरूरी होता है, बिकॉज दे लर्न बाय सीइंग द थिंग्स। उनको व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या जो भी है, क्लियर पिक्चर होना चाहिए, क्लियर पिक्चर देखना चाहिए। as well as teachers का body language, expressions and all these things उनको देखना बहुत जरूरी होता है। अगर वो टीचर का फेस नहीं देख सकते हैं तो they will not understand कि exactly टीचर क्या बोल रहे हैं, because उनके आंखें जहाँ, वहाँ उनके कान होते हैं। इतना याद रखना, विजुअल्स वाले जहाँ आपकी आंखें वहाँ आपके कान होते हैं। मतलब आप अगर जो आदमी बोल रहा है उसकी तरफ नहीं देखोगे तो सामने वाला जो भी कुछ बता रहा है आपको हो सकता है कि सुनाई भी नहीं देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सुनाई भी नहीं देगा। समझना तो अलग की बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन नॉट हियर, आपको सुनाई नहीं देगा। सो दोज हु आर विजुअल, आर यू एक्सपीरियंसिंग सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स? Yes, sir. आई एम ऑल्सो विजुअल, सो आई नो वेरी वेल कि बहुत प्रॉब्लम करता है। सामने वाला सीट मिला तो ठीक है, नहीं तो पूरा लेक्चर की वाट लग जाती है, नहीं तो पूरा हर बार ऐसा 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 करके थोड़ा सा ऐसा खड़ा होके सामने, अगर हमारे सामने वाला बेंच पे अगर कोई, इवन हम थिएटर में भी रहेंगे और हम मूवी देख रहे हैं और सामने अगर कोई टॉल बंदा अगर हमारे सामने बैठा होगा तो वी कैन नॉट फोकस ऑन मूवी, तो हमारा पूरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर घूमने में ही चला जाता है।
Only learning, because we are not able to see the picture clearly. Is it? Visuals वाले हैं? सानवी अकेले बात कर रही है और बाकी लोग बहुत सारे विजुअल्स बताए थे अभी. सर Yes. सर Yeah. हम कौन से लर्नर है वो पता कैसे चलेगा? ओके पता कैसे चलेगा? अगर आपको किसी को मालूम, अपने से किसी को अगर मालूम नहीं है कैसे पता चलेगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ. आज आपको मिलेगा लिंक, वो लिंक को क्लिक करके आप अगर कंप्लीट करोगे असाइनमेंट, तो असाइनमेंट के साथ साथ आपको कल का सेशन में आपका लर्निंग स्टाइल पता चलेगा. राइट? सो डोंट वरी ओके अबाउट सर, इट. थैंक यू. वो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, बिकॉज इट्स माय मिशन टू कंप्लीट 1 लाख स्टूडेंट्स. उनको लर्निंग स्टाइल का मालूम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा पूरा लाइफ ये लर्निंग स्टाइल के ऊपर ही चल रहा है. ओके, बेनिफिट्स विजुअल लर्नर्स को और क्या बेनिफिट होता है? तो पिक्चर्स चाहिए उनको, वर्ड चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, इमेज फॉर्म में कंसेप्ट होना चाहिए, खाली राइटिंग या ऑडियो बुक्स नहीं है. बेनिफिट्स यूजिंग चार्ट मैप, उसके लिए आपको माइंड मैप और फ्लैश कार्ड्स होना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा कलर्स होना बहुत जरूरी है. कलर फोटोज, कलर डायग्राम्स रहेगा तो ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. स्टडी लोकेशन, इनको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए. थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा भी आवाज आता है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. दे आर साइलेंट रीडर्स. उनको राइटिंग हैबिट अच्छी रहती है. दे लाइक रिटन एग्जाम और ओरल एग्जाम. ओरल क्वेश्चन अगर कोई पूछ लेता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, इन केस अगर आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल विजुअल है तो एग्जाम के पहले दिन नॉर्मली हम पूछ लेते हैं कि चलो बेटा देख लेते हैं आपका स्टडी हो गया नहीं हो गया, और बुक लेके हम उसको कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. सो प्लीज डोंट डू इट. बच्चे की जान लोगे. अगर आपका बच्चा विजुअल है, आपके ओरल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएगा. इवन दो ही नोज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, he will be in soup. और बाद में आप उसको डांटोगे, इतना स्टडी किया, पढ़ाई किया, फिर भी याद नहीं है, एग्जाम के लिए क्या करेगा? बच्चा और टेंशन में आ जाएगा. ब्रेन में उसके पैटर्न चालू हो जाएंगे, थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा. यार मुझे तो कुछ रिमेम्बरिंग, रिकॉलिंग नहीं हो रहा है, मैं अभी एग्जाम के लिए कैसे लिखूं? और रिकॉलिंग नहीं हो रहा है तो एग्जाम के लिए लिखना कैसे है? ये टेंशन में जो आता है वो भी भूल जाता हूँ. सो प्लीज डोंट डू दिस. डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस टू विजुअल स्टूडेंट्स. ऑडिटरी के लिए कोई टेंशन नहीं है. ऑडिटरी वाला बिंदास्त रहता है, उसको कोई भी पूछ लिया ना, सभी क्वेश्चंस के जवाब रहते हैं, लेकिन लिखता कुछ भी नहीं. उसको लिखने में तकलीफ होती है, वो आगे हम देखेंगे. राइट? सो विजुअल वाले, आर यू गेटिंग? जो मैंने बताया क्लियर है? यस सर. वो आपके साथ रिलेट कर रहा है? यस, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, ऐसा कुछ लग रहा है? यस, टोटली नो, मे बी पूरा का पूरा वैसा है. पूरा का पूरा वैसा ही है. ग्रेट. तो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है कि अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. तो हम जाएंगे अभी सेकेंड लर्नर, ऑडिटरी लर्नर. ऑडिटरी लर्नर्स कैसे होता है? उनको किसी ने तो डिस्कस करना चाहिए, उनको आवाज चाहिए, लिखना उनको पसंद नहीं होता है. उनको ई बुक्स नहीं चाहिए, उनको ऑडियो बुक्स चाहिए. राइट? ऐसे बहुत सारी चीज रहते हैं. उनको लेक्चर में बैठा है तो लेक्चरर्स के तरफ, टीचर के तरफ देखना मैंडेटरी नहीं है. मूवी देखने के लिए गया है, मूवी के तरफ देखना जरूरी नहीं है. वो मूवी देखने के लिए इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर अच्छे अच्छे गाने हैं, लेकिन विजुअल वाला अच्छे गाने हैं इसलिए मूवी देखने को नहीं जाएगा, और बोलेगा कि उसमें बहुत सारे लोकेशंस पे शूटिंग किया है एंड फॉर दैट पर्पस दिस इज गुड मूवी. उनके आंखें सेटिस्फाइड होना जरूरी है विजुअल वाले के लिए. ऑडिटरी के लिए उनके कान सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है. राइट? तो बहुत बार स्कूल में ये प्रॉब्लम आता है
टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। इन बच्चों को साइलेंटली रीड नहीं कर सकते, उनको लाउडली रीड करना पसंद रहता है, आवाज होना चाहिए उनका। उनको अगर हम ये भी बोलेंगे कि शांति से बैठो और स्टडी करो, फिर भी उनका लिप्स का मूवमेंट आपको दिखाई देगा, दे विल रीड लाइक दिस, उनका लिप्स का मूवमेंट चालू रहेगा, बिकॉज होता है। बिकॉज जब तक वो रीड नहीं करते, उनके मेंटली उनको उनका खुद का आवाज सुनाई नहीं देता है, तब तक उनका गाड़ी आगे नहीं चलती। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन लोगों का रीडिंग स्पीड बहुत कम रहता है, बिकॉज दे आर गोइंग विथ साउंड स्पीड। और विजुअल वाले दे आर रीडिंग विथ लाइट स्पीड। विजुअल होने की वजह से उनको खाली आंखें मूव करना है एंड ऑडिटरी वालों को सुनना है, सब कुछ हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उनके दिमाग में, उनको जब तक सुनाई नहीं देता अंदर ब्रेन को, तब तक उनका गाड़ी आगे नहीं जाता है। सो मे रीड अलाउड टू देमसेल्फ, जब उनको हम बोलते हैं कि चुप बैठ के स्टडी करो, तब ये उनको खुद का आवाज आना जरूरी होता है। देन दे लाइक बैकग्राउंड म्यूजिक व्हेन दे स्टडी। मैं नॉर्मली ऑडिटरी के जो बच्चे रहते हैं उनके पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्मली मैथ्स और साइंस का अगर आपको स्टडी करना है, मैथ्स और साइंस का अगर स्टडी करना है उनको, तो बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाओ। और म्यूजिक भी लगाना है तो कौन सा लगाना है, ऑडिटरी ऑरल वाला लगाना है या लिरिक्स वाला लगाना है या बीट्स वाला लगाना है, तो ये भी उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि उनको कौन सा ज्यादा पसंद है, राइट। हर एक का कुछ ऑडिटरी लर्नर्स को बीट्स पसंद रहता है, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स को लिरिक्स पसंद रहता है। अभी ये कैसे होता है कि ऑडिटरी लर्नर्स अगर लिंग्विस्टिक अच्छा रहेगा तो प्रेफर करेगा लिरिक्स के लिए, लेकिन अगर उसका लिंग्विस्टिक अच्छा नहीं है तो रिदम को पसंद करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? रिदम किसको देना है और लिरिक्स किसको देना है, वो ऑटोमेटिकली वो लोग Yes. सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्ट ही करते हैं कि मुझे लिरिक्स चाहिए। मुझे कुछ बच्चे रहते हैं कि उनको लिरिक्स की कुछ जरूरत है, उनको खाली ट्यून आ गया, रिदम आ गया, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, तो उनको स्टडी के रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टडी लोकेशन, इनको कहीं भी स्टडी करने के लिए बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉइजी प्लेस, साइलेंट प्लेस नहीं चाहिए, खाली साइलेंट प्लेस रहेगा तो वो खुद वहां जाके नॉइज करेंगे। कैसा नॉइज करेंगे, पेन निकालेंगे और टक 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 उनका आवाज चालू हो जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है तो। अदरवाइज दे विल डू समथिंग और वहां से वो आवाज क्रिएट करेंगे, लेकिन दे नीड साउंड। हम बहुत बार देखते हैं कि बच्चों को हमने स्टडी के लिए बिठाया रहता है और बच्चे स्टडी बुक लेके कहाँ आते हैं, हम जहाँ फैमिली वाले सब डिस्कशंस कर रहे हैं वहां आके बच्चे स्टडी करते बैठते हैं, या टीवी के सामने सोफा पे बैठ के आराम से स्टडी करें। उनको टीवी का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। वो वहाँ वो लोकेशन इसलिए प्रिफर कर रहे हैं बिकॉज दे नीड सम साउंड, बैकग्राउंड के लिए कुछ ना कुछ तो आवाज होना चाहिए। सो इसीलिए अगर किसी के पास बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी का रूम है तो प्लीज बच्चों को अकेले मत छोड़ो, वहां पे साउंड सिस्टम लगाओ, पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आना जरूरी है, नहीं तो बच्चा आपका स्टडी नहीं करेगा, फुल टाइम पास करेगा, नहीं तो सो जाएगा। सो इज इट क्लियर? उनका रीडिंग हैबिट मैंने बताया, स्लो Yes, sir. रीडिंग हैबिट उनका स्लो रहता है लाउडली बात करने की वजह से, एंड स्लो राइटिंग। छोटे बच्चे जब होते हैं नॉर्मली हमने देखा है कि दे आर नॉट राइटिंग डाउन इवन देयर असाइनमेंट्स आल्सो। टीचर जब असाइनमेंट बताती है कि आज का असाइनमेंट क्या है, तो ये ऑडिटरी के बच्चे असाइनमेंट लिख के नहीं आते बिकॉज दे डोंट लाइक राइटिंग, दे आर ऑलरेडी स्लो राइटिंग बट दे डोंट लाइक राइटिंग आल्सो, तो इसलिए वो लिख के नहीं आते हैं। नेक्स्ट डे जब टीचर रिमार्क देती है कि असाइनमेंट इनकम्प्लीट, तभी
पेरेंट्स को टेंशन आता है कि अरे इसमें तो लिखा ही नहीं है, टीचर ने कैसे दे दिया। तो टीचर बोलते हैं कि आपके बेटे ने शायद लिखा नहीं होगा। अरे बेटा क्यों नहीं लिखता है? अगर हम बेटे को पूछेंगे तो बेटा बोलेगा कि मुझे तो मालूम था, असाइनमेंट दिया है। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके घर पे अगर कोई बच्चे हैं जिनका आप स्टडी ले रहे हैं, तो डेली खाली डायरी मत देखो। अगर बच्चा ऑडिटरी है तो उसको ओरली क्वेश्चन भी करो, उसको पूछो कि आज का असाइनमेंट क्या दिया था, तो बच्चा बताएगा कि मम्मी ऐसा ऐसा दे दिया, पापा ऐसा ऐसा असाइनमेंट दे दिया था। तो आप नोट कर लो और उतना स्टडी उससे करवा के ले लेना, इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अदरवाइज उसको तो मालूम है लेकिन करना है ये प्रायोरिटी है क्या छोटे बच्चों के? नहीं है। तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके हमें उसको पूछना बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू आस्क हिम या हर कि आज का स्टडी क्या, आज का असाइनमेंट क्या दिया था, तो बच्चे बताएंगे, उनको मालूम रहता है सब कुछ और बच्चे झूठ नहीं बोलते, इमिडिएटली बता देंगे कि ये स्टडी दे दिया है और कब कंप्लीट करना है वो उसके बारे में भी पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है। राइट, ग्रेट। यस सर। इनको एग्जाम के लिए प्रॉब्लम क्या आता है मैं बताता हूँ। एग्जाम में उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत कुछ आता है लेकिन वो नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? राइटिंग स्लो डाउन होता है, हाथ में दर्द करना चालू हो जाता है, लिखने की आदत नहीं है। एंड फॉर दैट पर्पज ऑडिटरी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 जरूरी है। ये बच्चे बहुत अच्छे बोलते हैं, दे आर गुड स्पीकर, लेकिन ये बच्चों के लिए आपको राइटिंग का हैबिट अगर नहीं करेंगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लिखा है उसी के ऊपर मार्क्स देते हैं, कितना बात कर रहे हैं उसके ऊपर परसेंटेज दिए नहीं जाता है। राइट, okay, what is the solution for writing for exam by such auditory child? Yes Anga ma'am, the same thing just I was discussing कि उनको राइटिंग का हैबिट चालू करना बहुत जरूरी है। जबरदस्ती से उसको कुछ लिख के लेना डेली बेसिस पे, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एनी अदर क्वेरी? नहीं, ओके। सो दीज आर द फैक्टर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस मिस हो जाता है। लिखने के लिए आता है लेकिन टाइम नहीं मिलता स्लो राइटिंग की वजह से। तो इसके ऊपर थोड़ा सा पेरेंट्स हमें ध्यान देना है, बच्चे आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, सो दैट यू विल नॉट मिस दैट पार्ट। किनेस्थेटिक में क्या है? नॉर्मली आपने देखा होगा सम चिल्ड्रन, एक मिनट, क्या लिखा है? सम चिल्ड्रन मे बी साइलेंट बट may like music in background or may not read aloud, whether they will still be auditory? नहीं, अगर बच्चे साइलेंट है और म्यूजिक लाइक कर रहे हैं, दैट इज नॉट ऑडिटरी। हर बार ऑडिटरी नहीं होता है, उसका लिप्स का मूवमेंट होता है तो ऑटोमेटिक ऑडिटरी है। अगर लिप्स का मूवमेंट नहीं है रीडिंग करते समय और बैकग्राउंड के लिए म्यूजिक ले रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, सो ही इज नॉट ऑडिटरी। इंडिया में सबको म्यूजिक अच्छा लगता है, इंडिया के कोई भी कोने में हम जाएंगे तो ऐसा एक भी रीजन नहीं है कि जहां बिना सॉन्ग्स मूवी चलता है। अगर मूवी में सॉन्ग अच्छे नहीं है तो इंडिया के कोई भी रीजन में वो मूवी नहीं चलेगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग उसको उठा के फेंक देंगे। राइट ना? तो ऑडिटरी म्यूजिक सुनना ये हमारे it's a part and parcel of our Indian community, we can very well say. Last time what time? Last in what time? 5 o'clock sir, 5 बजे तक और 10 मिनट रहेगा। 4 o'clock to 5 o'clock every day, 4 o'clock to 5 o'clock जय sir. So we have to make that slot reserved for this session for next 4 days. Okay, yeah, thank you sir. लर्निंग स्टाइल्स इन एट स्कूल में हमने देखा जो अभी इनको कैसे का और कहाँ बैठना है। विजुअल के बच्चे जो है नॉर्मली आपका सिटिंग अरेंजमेंट टीचर आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो है उसी के सामने वाला रो में होना चाहिए, लेकिन पिछले 2 रो छोड़ के आगे के 3 रो में ही आपका स्टैंडिंग सिटिंग पोजीशन होना बहुत जरूरी है।
आजकल मालूम नहीं कि ये फंडामेंटल किसी ने निकाला कि पूरा इंडिया में रोटेशन सिस्टम चल रहा है. On hot basis they are doing this rotation. Don't know. Some parents have just give some complaints कि हमारे बच्चों को ही क्यों पीछे बिठाते हैं. तो उनको आगे बिठाने के लिए पूरी एक विजुअल वालों की वाट लग गई है, क्योंकि विजुअल वाला बच्चा अगर ये पैटर्न से थोड़ा भी अगर बाहर चला जाता है, then that entire week or entire month he will be out of studies, out of learning. तो इसीलिए नॉर्मली आपके अगर लर्निंग स्टाइल विजुअल है तो स्पेशली रेकमेंड करो स्कूल्स को कि हमारे बच्चों को आगे की सीट होनी चाहिए. कम से कम आगे आगे का बेंच वाली नहीं भी मिलेगी तो चलेगा, लेकिन आगे का जो पोर्शन मिडल वाला जो रो रहता है, पोर्शन रहता है, वो पोर्शन में पहले 1 2 3 4 के अंदर ही, बेंच के अंदर भी मिडल वाला सेक्शन में उसको बैठने के लिए जगह मिलना बहुत बहुत जरूरी है. एंड यू कैन फोर्स योर स्कूल टू डू दैट. अगर कोई मना करता है तो उनको बोलो डॉक्टर मोहन पाखरे का लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर एक लेक्चर रखो स्पेशली फॉर टीचर्स एंड मैनेजमेंट, तो हम उनको फ्री में वो गिफ्ट कर देंगे. वी आर गिविंग दिस चैरिटी बिकॉज लायंस क्लब से हमने कम से कम मोर देन 50 स्कूल्स को हमने ट्रेन किया है बेस्ड ऑन दिस, एंड नाउ दे आर रेडी टू डू दैट अरेंजमेंट. कम से कम उनको पता चला कि इससे प्रॉब्लम हो रहा है. हम तो क्राउड के साथ भाग रहे थे, लेकिन क्राउड के साथ जाके कुछ फायदा नहीं. बहुत बार क्राउड गलत डायरेक्शन पे चला जाता है, राइट. सो हमें अगर मैनेजमेंट को मालूम नहीं है, टीचर्स को मालूम नहीं है, तो बताना जरूरी है. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ पेरेंट. So ऑडिटरी स्टूडेंट कहाँ बैठेगा सर? हाँ सर, बता रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ. तो नॉर्मली विजुअल के बच्चे आगे होना बहुत जरूरी है. ऑडिटरी और किनेस्थेटिक के जो बच्चे रहते हैं, किनेस्थेटिक के लिए और विजुअल के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, ऑडिटरी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ऑडिटरी का बच्चा क्लास में कहीं भी बैठ सकता है जहां तक आवाज पहुंचती है. जहां आवाज नहीं पहुंचती वहां पे वो बच्चा काम नहीं करेगा. इसलिए नॉर्मली क्लासरूम के अंदर ऐसा कोई लोकेशन नहीं रहता कि जहाँ पे आवाज टीचर्स के नहीं जा सकती. सो ऑडिटरी टीचर स्टूडेंट्स कैन सिट एनी लोकेशन, डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि उनको टीचर को देखने की जरूरत नहीं है. विजुअल वालों को टीचर दिखना बहुत जरूरी होता है, एंड फॉर दैट पर्पस दे नीड फ्रंट व्यू. और किनेस्थेटिक वाले जो बच्चे रहते हैं उनको कभी भी वॉल को टच करके नहीं बिठाना, वो सो जाता है. उनको सपोर्ट मिल गया, सो गए. उनको कहीं भी अगर बिठाने के लिए बोल देंगे तो ऐसी जगह लोकेशन देखेंगे कि जहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा. घर में भी बैठेंगे तो सपोर्ट के बिना वो नहीं बैठेंगे. कहीं प्रोग्राम के लिए भी जाएंगे तो सपोर्ट कहाँ मिलता है वो देख के वो बच्चे या वो लोग बैठेंगे. सो फॉर दैट पर्पज ऐसे लोकेशन चाहिए. अगर स्कूल में अटेंटिव रहना है तो बिना सपोर्ट उसको बिठाना बहुत जरूरी है. वॉल का साइड और पीछे वाला रो छोड़ के उसको आगे कहीं भी बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, कोई टेंशन नहीं. उसको फ्रंट वाला सीट नहीं बिठाना जरूरी नहीं है. फ्रंट वाला कभी मत बिठाओ क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता. अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि विजुअल के टीचर्स जो भी सिखाते हैं विजुअल के बच्चों को समझ में आता है, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक को बहुत कम समझ में आता है. किनेस्थेटिक को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है. ऑडिटरी का जो टीचर रहता है वो ऑडिटरी के बच्चों को अच्छा लगता है, विजुअल वालों को बहुत कम समझ में आता है, और किनेस्थेटिक वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता है. फॉर दैट पर्पज ऑडिटरी टीचर और विजुअल के टीचर रहेंगे तो किनेस्थेटिक के बच्चे सो जाते हैं बिकॉज उनको दोनों का भी कुछ समझ में नहीं आता. एंड फॉर दैट पर्पज रिसेंटली जो भी हमारे एजुकेशन में डिस्कशन आगे गया है उसमें क्या किया है उन्होंने, सो दे हैव डिड सम एक्टिविटीज. तो एक्टिविटीज के थ्रू उनको इंक्लूड करने के लिए ये एक्टिविटी स्पेशली आया है किनेस्थेटिक के बच्चों के लिए, राइट. तो विजुअल के टीचर्स कैसे सिखाते हैं, हाथ में चॉक लेके बोर्ड क्लीन करके. ऑडिटरी वाले बोर्ड पे कभी कुछ नहीं लिखते, एंड किनेस्थेटिक वाले जैसे आपने देखा है तारे जमीन पे, क्या नाम है एक्टर का, आमिर खान, वैसे टीचर एक्टिविटी के साथ सिखाने वाला, राइट. अभी यहाँ पे लर्निंग स्टाइल एट होम. लर्निंग स्टाइल एट होम में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, इसमें अगर हस्बैंड ऑडिटरी है, वाइफ
विजुअल है तो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हस्बैंड ऑडिटरी है, वाइफ विजुअल है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। हस्बैंड विजुअल है, वाइफ ऑडिटरी है, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। और किनेस्थेटिक के साथ तो किनेस्थेटिक वाला जस्ट एंजॉय करता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत लंबा सेक्शन हो सकता है, बिकॉज आई हैव फैमिली के लिए, पेरेंटिंग के लिए इसके ऊपर काफी बड़ा स्कोप है बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल्स। हमारे फैमिली में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे फैमिली में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, इट्स बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल एंड पर्सनैलिटी। हमारा थॉट प्रोसेस हर एक का अलग अलग है, हमारे पर्सनैलिटी और लर्निंग स्टाइल के साथ वो मूव होता है। तो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमारा पर्सनैलिटी क्या है एंड हमारा लर्निंग स्टाइल कैसे। साथ में ऑफिस में बॉस, देखो अगर आपको लीव एप्लीकेशन डालना है और बॉस अगर विजुअल है तो आपको लीव ऑफिशियली फिजिकल कॉपी उसके सामने रखना जरूरी है, लेकिन ऑडिटरी के बॉस को लिए वो जरूरी नहीं है। बोलेगा कम से कम फोन पे फोन करके बता तो दे, बताना तो चाहिए था कि तू नहीं आने वाला है आज काम पे। लेकिन विजुअल वाला बोले, फोन करने के बाद भी बोलेगा कि क्या लीव एप्लीकेशन दे दी आपने, अगर नहीं है तो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये चीजें होती हैं, हर एक का लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से बिहेवियर पैटर्न्स भी अलग अलग हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि आपको ये टेस्ट तक कैसे पहुंचना है, हाउ टू रीच फॉर दिस टेस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा वेबसाइट है drmohanpakre.com, वहाँ पे चले जाना, ओके। एंड वहाँ जाने के बाद आपको एक स्टूडेंट्स टैब मिलेगा, मैं यहाँ आपको शेयर करके दिखाता हूँ। I'll share this new screen here. यहाँ आपको लिखना है drmohanpakre.com। तो आपको अपना वेबसाइट जो है सामने आ जाएगा। इन दैट वेबसाइट यहाँ आपको स्टूडेंट्स करके टैब दिख रहा है, सो यू विल गेट दी स्टूडेंट टैब, और नीचे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट डैशबोर्ड एज वेल एज फ्री लर्निंग स्टाइल एनालिसिस लिखा है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फ्री लर्निंग स्टाइल एनालिसिस। जैसे आप फ्री लर्निंग स्टाइल एनालिसिस पे क्लिक करोगे, यू विल गेट न्यू पेज, फ्री लर्निंग स्टाइल एनालिसिस। और यहाँ एक असेसमेंट है स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा है टीचर्स के लिए, ऐसे दो असेसमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स कैन गो इन स्टूडेंट्स असेसमेंट एंड टीचर्स कैन गो इन टीचर्स असेसमेंट। पेरेंट्स कैन आल्सो गो इन टीचर्स असेसमेंट, बिकॉज टीचर्स के लिए जो दिया है दिस इज फॉर एडल्ट्स, और स्टूडेंट्स के लिए जो दिया है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दिया है। सो यू कैन क्लिक एनी वन लिंक, और आगे जाएंगे तो वहाँ एक आपको गूगल का फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म सबमिट करके आपको देना है। दैट्स इट। वो सबमिट हो जाएगा तो मेरे पास डिटेल्स आ जाएगा। बेस्ड ऑन दैट डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, कल का सेशन में हम आपको बता देंगे कि उसमें हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, आपका हर एक का लर्निंग स्टाइल क्या है। साथ में जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट किया है, दे कैन आल्सो गो फॉर दिस टेस्ट। वी हैव सो मेनी अदर कम्युनिटीज आल्सो, इन दैट वी हैव स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हब। आप गूगल में जाके स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हब देख सकते हैं। वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड पेरेंट स्कूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एक फेसबुक पेज है, आप जाके लाइक करो, वहां से आपको स्लोली इन्फॉर्मेशन मिलना चालू हो जाएगा। जस्ट वी हैव स्टार्टेड इन लास्ट मंथ, सो अभी तक उसके कुछ रीच नहीं है, बट स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन हब you can search in Google and you will get complete details about student transformation hub, as well as हमने youth को कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए we have started transformation hub for youth also. That's it. We have websites, दो websites है, jineshIndia.org as well as drmohanpakre.com, as well as we have mobile apps, Jinesh India, and recently we have started Dr. Mohan Pakre. Both are available in Google Play Store, but recently this Google Jinesh India we are discarding and we are continuing only Dr. Mohan Pakre. That's it.
Any queries, questions you can ask. It's a 5 o'clock. Officially, I am declaring my part is over. So Thank you, अभी अगर आपके कुछ questions है, queries है, we can have another next 5 minutes. Great job, sir. Thank you, I Dinesh. have another activity, so I am leaving. My son will be there. Yeah. Thanks. Officially it is declared. Our session is over. You can leave. No issue. No, I have so many questions, but now because I have my another activities, I will ask you tomorrow. Okay, fine. Otherwise, you can put it in group so that Okay, great. that will be shared discussed in tomorrow's session. But, only admin can text there, so you have to open. Yeah. I'll open that. Thank you. अभी जितने भी लोग हैं उनके लिए मैं उसका लिंक भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ so that Okay. everyone can. बहुत सारे लोग जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, so I am giving that link. अभी चार्ट में मैं लिंक दे रहा हूँ. Everybody can join that group so that वहाँ पे आपको सब लोगों को उसका इंफॉर्मेशन आगे का मिल जाएगा. And all the next tomorrow onwards, so that links and all the things will be available in Sir, this group only. आज का लेक्चर का ऑडियो वीडियो मिल सकता है सर ग्रुप पे? Yes sir. मैं शेयर कर दूंगा. And visuals. Thank you, sir. Thank you very much. God bless. Yes sir. Yes. Next. That video recording, whatever it is there with screen sharing as well as lectures, that everything will be available. Thank you. Sir. Bye, sir. I'm Thanks. sharing the details. सब लोग जो लिंक दिया है वो लिंक को क्लिक करो and join our WhatsApp group so that आगे का जो लिंक्स है सब लिंक्स आपको उसी के अंदर मिल जाएगा. And that entire training program should be next 4 days का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको उसी के अंदर मिल जाएगा. Yeah, it was a nice session, Dr. Sir. Yeah, thank you very much sir. Thank you, sir. मेरी Any- बेटी any दिख other रही है, queries? उनके friends भी कुछ आने query वाले है? हैं. आज के सेशन में कुछ क्वेरी है तो हाँ पूछ सर. लेना. नहीं, कोई क्वेरी नहीं है, बस वही अच्छा पॉइंट आपने समझाया. अभी मेरी बेटी समझ गई है. वो ऑडिटरी Great. है कि विजुअल है. और आज का टेस्ट लेने के बाद उनको और क्लियर हो जाएगा अगर मालूम नहीं है. That will be best. हाँ जी. मैं Okay, साइड okay. पे देख लेता हूँ. या एनी Thank you. अदर्स? किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, क्वेरी नहीं है ना? सब लोग लिंक No, पे sir. हाँ, आई एम डिक्लेयरिंग दैट टुडे सेशन इज ओवर. अगर लिंक पे क्लिक नहीं किया है तो इमीडिएटली लिंक पे क्लिक करो. मैं उसके लिए और 1 मिनट रुकता हूँ और आप इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो. Those who have completed and joined the group can leave the meeting now. No issue. Thank you very much. Sir, Yeah, thank you, sir. thank you very much. Welcome. Thank you, sir. Thank you.